Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics. That is, we have discussed the microeconomics as well as statistics for economics. So from the previous few classes, we were continuously revise the chapters. We have done numbers of the numerical questions which is related to your statistics for economics. So in which we have discussed the measures of the central tendency, mean, median, mode, as well as we have discussed the measures of the dispersion, in which we have to discuss the measures of the standard deviation and the variation and the coefficient of variation, Lorentz curve. After that, we have started the correlation as well as the index number. Simultaneously, we have also discussing the chapters basically which is related to your microeconomics. So we have also recapitulate all the topic like theory of demand, production functions, the price determination, as well as the main market forms, simple applications of the tools of the demand and supply. But we are going to study those chapters more in which students are the facing the problem. So as we discussed in the online or as well as offline class, students are the facing basically the problems in the correlation. Okay, so in the correlation we have to study the some topics. So in today's class we are going to study the correlation. Okay, so let's get started. So in this chapter basically what we discuss in today's class, first of all we discuss the types of the correlation. Okay, types of the correlation, degree of the correlation. So first of all, simply we know what is the meaning of the correlation. So correlation analysis the studied the relation between the two variables. Okay, relationship between two variables. टू वेरिएबल्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. जैसे एक्स एंड वाई वेरिएबल ले लिया, इन दोनों के बीच में हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या रिलेशन है एक्स एंड वाई का. अगर एक्स में चेंज हो रहा है तो वाई पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वाई पे चेंज हो रहा है तो एक्स में इम्पैक्ट क्या हो रहा है. जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं प्राइस और डिमांड का. ठीक है, एक्स वेरिएबल हम लोगों ने ले लिया प्राइस और वाई वेरिएबल ले लिया डिमांड. Okay, so in the price and the demand, basically we deal with the price and demand. We know we have already discussed in the theory of demand, that is there is basically the negative relation between the price and the demand. How? When the price of the any commodity, okay, when the price of the any commodity increases, so quantity demanded decreases. Okay, तो ये क्या हो गया, दो वेरिएबल्स में, टू और मोर देन टू वेरिएबल्स में क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं. जैसे रेनफॉल ले लिया, रेन ले लिया, और प्रोडक्शन ऑफ वीट, कि वीट पे भी, वीट का प्रोडक्शन और राइस का प्रोडक्शन डिपेंडेंट होता है कितना रेन हो रही है, मतलब कितनी बारिश हो रही है. अब अगर कम होगी तो उसका प्रोडक्शन पे भी क्या होगा, डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा. तो ये क्या हो गया, रिलेशन देख लिया हमने टू वेरिएबल्स में. यही अगर हम लोग बात करते हैं प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, तो व्हेन द प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी इंक्रीजेस, सो द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीजेस. ओके, एंड द प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस. सो हियर वी सी द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. यहाँ पे हम लोगों ने प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन देखा. नेक्स्ट हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं एक्स एंड वाई, that is price and supply. Is it visible? Yes. So price and the supply के बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं. जैसे प्राइस और सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड. सो इफ द प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा. और जब प्राइस इंक्रीज कर गई, किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर पहले उसको ₹10 मिल रहा था, अब उसको ₹15 मिल रहा है, ₹5 का उसका प्रॉफिट हो रहा है,
तो जब जैसे ही प्रॉफिट होगा तो वो अपना सप्लाई क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे कोरिलेशन हम किसके बीच में देख रहे हैं, टू वेरिएबल्स के बीच में देख रहे हैं, दैट इज टू वेरिएबल आर बेसिकली द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई। Price, when the price of the any commodity increases, next the quantity supply of the any commodity also increases. So when the price of the any commodity decreases, so quantity supplied of the any commodity also decreases. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन देख रहे हैं प्राइस एंड दी क्वांटिटी सप्लाइड में, यहाँ पे हम लोग प्राइस एंड डिमांड में निगेटिव रिलेशन देख रहे हैं। Okay, so after the number of variables, next topic is degree of correlation. Degree of correlation. Okay, so it is divided into three. Okay, so the degree of relationship between the two variables refers to the coefficient of correlation. Okay. सो ये जो डिग्री होती है रिलेशनशिप, अगर हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तो वो क्या बताता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इन अदर वर्ड्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर्स द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ द कोरिलेशन। दैट मीन्स कि जो कोरिलेशन है वो बताता है कि कोई भी अगर हम वेरिएबल्स ले रहे हैं उनमें कितना ज़्यादा इंटेंस रिलेशनशिप है, उनके रिलेशनशिप को मेजर करता है कौन, कोरिलेशन। मतलब अगर हम लोग प्राइस और डिमांड की बात करते हैं तो प्राइस के कितना चेंज होने पे क्वांटिटी में कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं, ये रिलेशन कौन बताता है, कोरिलेशन। ओके, सो डिग्री ऑफ कोरिलेशन को थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज परफेक्ट कोरिलेशन, सेकेंड वन इज एब्सेंस ऑफ द कोरिलेशन एंड द थर्ड वन इज लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सो फर्स्ट वन इज परफेक्ट कोरिलेशन, perfect correlation. Second one is absence of correlation. And the third one is limited degree of correlation. Okay, so degree of correlation is divided into three: perfect correlation, absence of correlation, and the third one is limited degree of correlation. Okay, so first of all we will deal with the perfect correlation. Okay, so perfect correlation is further divided into two, that is perfect positive correlation and perfect negative correlation. Perfect positive correlation and the perfect negative correlation. Negative correlation. Okay. So when two variable changes increase or decrease in the same proportion, अगर जब कोई भी दो वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है, बट इट विल बी इन द सेम प्रपोर्शन। अगर x इंक्रीज कर रहा है और y वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो जब भी ये दोनों इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो जब प्रोपोर्शन की हम बात करेंगे वो क्या होगा, हमेशा ही सेम होगा और हमेशा ही इक्वल होगा। उसको हम लोग बोलते हैं सो परफेक्ट कोरिलेशन में भी पॉजिटिव और भी निगेटिव। तो परफेक्ट कोरिलेशन क्या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही हो सकता है। सो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, परफेक्ट कोरिलेशन। सो व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल इज इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि अगर ये जो दो वेरिएबल हैं वो चेंज हो रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दो वेरिएबल अगर हम लोग लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल x और y वेरिएबल, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन दिस केस इज 1। इस केस में परफेक्ट कोरिलेशन
में क्या होगा, पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में क्या होगा, जब कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी, वो +1 हो, ठीक है, मतलब 1 होगी, ठीक है। तो इसका व्हेन डेटा आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर, अगर हम लोग जो डेटा है ये एक्स और वाई के वेरिएबल्स का, उनको क्या करेंगे, डायग्राम पे और ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, सो वी सी दैट ऑल द पॉइंट वुड बी लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। सारे जो ये पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। क्यों होंगे, बिकॉज जो ये प्रपोर्शन, जितना ही प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है वो प्रपोर्शन हमेशा ही क्या होगा, वो सेम होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक्स वेरिएबल है 1 2 3 4 5, राइट। वाई वेरिएबल लेते हैं हम लोग 10 5 10 15 20 और 25। अब देखिए दोनों वेरिएबल्स का जो ये प्रपोर्शन चेंज हो रहा है, प्रपोर्शनेट चेंज हो रहा है, वो हमेशा ही सेम होगा। इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1 का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। अगर हम y वेरिएबल का बात करते हैं तो 10 और 5 डिफरेंस 5 5 5 एंड 5। ये क्या हो रहा है कि x और y वेरिएबल वेदर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दे विल बी ऑलवेज इन द सेम प्रपोर्शन, ठीक है, इन द केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन। और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, +1, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट निगेटिव। परफेक्ट निगेटिव, so when proportional change in two variable is in the opposite direction, अगर क्या होता है कि जो चेंज हो रहा है वेरिएबल वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कि पहले पॉजिटिव था तो वो क्या असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा था, बट अब यहाँ पे क्या है कि ये जो होंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 20 30 40 50 है एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल क्या होगा 10 8 6 4 एंड 2, मतलब वेरिएबल्स जो चेंज हो रहे हैं दे ऑल आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। इट इज कॉल्ड दी परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। और इसकी वैल्यू क्या होती है निगेटिव कोरिलेशन की, -1 +1 -1, ठीक है। तो इसका एग्जांपल यही था 10 20 30 40, जैसे एक वेरिएबल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। फिर सेकेंड आता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अगर हम लोग दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल का देखते हैं कि दोनों में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या तो उनमें एक्स और वाई वेरिएबल है या तो कोई रिलेशन नहीं है, या तो एक एक्स अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो वाई वेरिएबल पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे कोई हम लोग ले लेते हैं जैसे किसी भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड एज ऑफ द पीपल। अगर हम लोग प्राइस ले रहे हैं कोई कमोडिटी की और एज ले रहे हैं, तो वेरिएबल तो हमने देखा दो है, बट एक का अब प्राइस का किसी की एज पे क्या मैटर करता है, कोई नहीं है, तो कोई इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कि वेरिएबल्स दो हैं या तो उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, या तो अगर है तो एक्स वेरिएबल का इम्पैक्ट वाई पे कुछ भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्सेंस ऑफ द कोरिलेशन। सो जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल 100 70 250 360 90 एंड सो ऑन। और इसमें भी कोई ले लीजिए आप 20 45 95 36 और 10। अब देखिए ये जो दोनों वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, इसमें देखिएगा कि कोई भी रिलेशन नहीं है, कि अगर एक इंक्रीज भी कोई नहीं कर रहा है, जैसे अब 100 है फिर ये डिक्रीज कर गया, फिर ये इंक्रीज कर गया एंड देन डिक्रीज कर गया। अब इसके साथ हम इसका रिलेशन देख रहे हैं कि ना इसमें कोई कॉन्स्टेंटली ये कुछ चेंज हो रहा है, ना ये वाई वेरिएबल, क्योंकि वाई वेरिएबल 20 से 45 हुआ, 45 से 90 हुआ एंड देन
डिक्रीज अप टू 36 एंड देन 10। तो इन दोनों में क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ द कोरिलेशन। कि कोरिलेशन का क्या है इसमें, एब्सेंट, कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन मतलब कि अगर हम लोग कोरिलेशन की बात करते हैं तो कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, -1 से +1 के बीच में वैरी करती है, -1 to +1 के बीच में वैरी करती है, जिसमें ये क्या शो करता है कि अगर कोई दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं तो उनमें कितना ज़्यादा, कितना इंटेंस रिलेशनशिप है, या वो रिलेशनशिप हाई डिग्री का है या मॉडरेट है और लो डिग्री का, ठीक है। तो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, moderate degree of correlation, moderate degree of correlation, and the last one is low degree of correlation, okay। ओके, सो देखिए लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन कह रहा है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ चेंज इन वन वेरिएबल नीड नॉट टू बी एग्जैक्टली कंपेनियड बाय ए करस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर वेरिएबल, ठीक है। अगर एक वेरिएबल में कोई चेंज हो रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि करस्पॉन्डिंग अदर वेरिएबल में भी क्या हो, चेंजेस आए। सो इट इज अ सिचुएशन बिटवीन द परफेक्ट कोरिलेशन एंड द एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, बिटवीन 0 to +1 और बिटवीन 0 to -1। मतलब ये जो होता है, ये रिलेशन किसके बारे में बता रहा है कि परफेक्ट कोरिलेशन भी हो सकता है, मतलब 1 भी हो सकता है, और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन भी हो सकता है। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन मतलब 0, ठीक है, इसकी भी ये बात करता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 0 to +-1 इज कॉल्ड द लिमिटेड कोरिलेशन, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है ये क्या करती है, 0 to +- के बीच में वैरी करती है, जिसमें क्या है, जिसको लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। सो हाई, फर्स्ट वन इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सो इट इफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन 0.7 and 1, अगर इसकी वैल्यू क्या है, 0.75 से 1 के बीच में वेरी कर रही है, दैट मीन्स ये क्या है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सो इट विल बी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन को भी 2 में डिवाइड करता है, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड हाई डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अगर हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, दैट मीन्स वैल्यू क्या होगी, +0.75 से +1 के बीच में वैरी करेगी। वही हम बात करते हैं निगेटिव कोरिलेशन की, तो ये जो वैल्यू है -0.75 से -1 के बीच में वैरी करेगी, ठीक है। ये जो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ठीक है, -0.7 से -1 के बीच में वेरी करती है। जब हम लोग हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, 0.75 से 1 के बीच में वेरी करती है। वही हम बात करते हैं जब मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन की, तो मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में वेरी करती है, 0.25 to 0.75 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। अब इसको भी क्या करते हैं, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड मॉडरेट डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन में भी हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो वैल्यू क्या होगी, -0.25 से -0.75 के बीच में वैरी करेगी,
ठीक है। जब हम लोग पॉजिटिव की बात करते हैं तो -0.25 से -0.75 के बीच में वैरी करेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं निगेटिव की तो वैल्यू क्या होगी आपकी 0.25, मतलब +0.25 से +0.75 के बीच में वैल्यू वैरी करेगी, ठीक है। ये हो जाता है आपका मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लास्ट जो है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ये वैल्यू ये किसके बीच में वैरी करती है 0.25 से, दिस वैल्यू वैरीज फ्रॉम दी 0.0 टू 0.25, 0 से 0.25 के बीच में वैल्यू वैरी करती है। इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड लो डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। दो में डिवाइड किया, लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अगर वैल्यू क्या होती है 0 से +0.25 के बीच में होती है, सॉरी आई हैव रिटन रॉन्ग हियर, दिस विल बी पॉजिटिव ना, दिस विल बी निगेटिव, ओके सॉरी, सो इट विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो +0.5 से 0.25 से 0.75 के बीच में वैरी करेगी। अगर हम निगेटिव बात करते हैं तो -0.25 से -0.75 तक वैल्यू वैरी करेगी। अगर हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं तो वैल्यू विल वैरी बिटवीन 0 टू 0.25, 0 से 0.25 के बीच में वैल्यू वैरी करेगी। अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो वैल्यू 0 टू -0.25 के बीच में वैल्यू वैरी करेगी, ठीक है। 0 से 0.25 के बीच में वैल्यू क्या करेगी वैरी करेगी, ओके। तो ये हो गया आपका क्या डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। सो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में हमने क्या क्या देखा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, 3 पार्ट है इसका। फर्स्ट वन इज परफेक्ट कोरिलेशन, सेकेंड वन इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, थर्ड वन इज लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, परफेक्ट कोरिलेशन मतलब जो भी हम लोग वेरिएबल्स ले रहे हैं उनमें क्या है बहुत इंटेंस रिलेशनशिप है बिटवीन दी वेरिएबल्स। इसको फिर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड द निगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन में वेरिएबल्स क्या होते हैं सेम प्रपोर्शन में चेंज होते हैं, इसमें क्या है सेम प्रपोर्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन को जब देखते हैं तो हम ये कि एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें या तो कोई रिलेशनशिप है नहीं, या तो है तो एक का क्या है, एक का चेंज दूसरे पे चेंजेस में कोई भी फर्क नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, थर्ड वन इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर हम लोग हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में देखते हैं तो जो वैल्यू होती है कोरिलेशन की, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, द वैल्यू विल बी वेरी बिटवीन दी 0.25 टू 1, वैल्यू क्या करेगी 0.25 से 1 के बीच में वेरी करेगी। मॉडरेट डिग्री में मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन में वैल्यू क्या होगी 0.25 से 0.75 के बीच में वेरी करेगी। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में वैल्यू क्या होगी 0 टू 0.25 के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। अब ये हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में भी क्या होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, क्या पॉजिटिव, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन। अगर हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है सो वैल्यू होगी 0.2 प्लस 0.75 टू +1। अगर हाई डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन होगा तो -0.75 टू -1, ओके। नेक्स्ट है मॉडरेट डिग्री की वैल्यू 0.25 से 0.75, इसके भी फर्दर विल डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन। So when we talk about the positive, moderate degree of positive correlation, the value will vary between +0.25 to +0.75. वहीं नेगेटिव में क्या होगा -0.25 टू -0.75 तक वैल्यू वेरी करेगी। फिर आता है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में वैल्यू, इसके भी 2 टाइप्स हैं। सो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन। सो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन में वैल्यू वेरी करेगी 0 प्लस
0 to प्लस 0.25 से, निगेटिव में वैल्यू वेरी करेगी 0 to माइनस 0.25। तो ये आपका क्या हो गया, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका मेथड्स ऑफ द एस्टिमेटिंग द कोरिलेशन, कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द एस्टिमेटिंग द कोरिलेशन। ठीक है, इसको देखते हैं। तो जब हम मेथड्स देखते हैं एस्टिमेट करने के कोरिलेशन को, तो इट विल डिवाइडेड इनटू 3। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या होता है, सबसे पहला स्कैटर डायग्राम मेथड, कि हम लोग जो भी डिफरेंट आपके कोरिलेशंस है, पॉजिटिव, वेदर द रिलेशन इज पॉजिटिव और द नेगेटिव, सो वी विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ग्राफिकली जो प्रेजेंट करना होता है वो होता है स्कैटर डायग्राम मेथड। नेक्स्ट होता है आपका कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हम लोग बहुत 4 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड we will calculate the value of the correlation. Third one is rank correlation, which is given by the Spearsman rank correlation. Okay, so as you already know, due to COVID, your syllabus has been reduced up to 30%, so you no need to study the Spearsman rank correlation. Okay, you have to study only 2, that is scatter diagram and the Karl Pearson's coefficient of correlation. Okay. So we will explain it thoroughly. The topic is methods of the estimating correlation. Methods of estimating correlation. First one is scatter diagram method. Scatter diagram method. Second one is Karl Pearson's coefficient of correlation, and the third one is Spearsman rank correlation. Okay, so method of the estimating correlation में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, स्कैटर डायग्राम मेथड पढ़ना है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। ओके, तो इसमें हमने देखा कि स्कैटर डायग्राम में क्या करना है कि ये जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं कोरिलेशन की, उसको क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे, मतलब विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ पेपर पे वैल्यूज़ को प्लॉट करके, अगर वो एक्स और वाई वेरिएबल को प्लॉट करके, अगर वो लाइन क्या है स्ट्रेट बनती है, तो स्ट्रेट में भी फ्रॉम अप टू राइट जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो वो क्या है परफेक्ट कोरिलेशन। वहीं अगर जो लाइन है वो स्ट्रेट तो बन रही है बट डाउनवर्ड जा रही है, तब क्या होगा, डाउनवर्ड हो रही है लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स यहाँ पे कोरिलेशन तो परफेक्ट है बट निगेटिव कोरिलेशन। वही हम बात करते हैं डायग्राम की, जब हमारा जो डायग्राम हमने वैल्यूज एक्स और वाई वेरिएबल को प्लॉट किया और ये एकदम ही स्कैटर्ड है, जहाँ से हमको पता ही नहीं चल रहा है कि एक्स और वाई वेरिएबल, हम इवन कांट एबल टू ड्रॉ एनी सिंगल लाइन, तो ये क्या है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। मतलब कोरिलेशन में कोई भी हम बता ही नहीं सकते कि 2 वेरिएबल जो हमने लिया है वो उसमें क्या रिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में मैंने बताया इसमें 4 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड द स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें क्या है, इसके डिफरेंट फार्मूला है, तो विद द हेल्प ऑफ द फार्मूलाज वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो वी आर डूइंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन द
online as well as offline class also. Okay, and you no need to study the Spearman rank correlation because it is deleted from your syllabus.